Welcome back, friends. In the last lecture, measure of dispersion में स्टूडेंट्स हमने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट किए रेंज के जो टॉपिक हम चला रहे हैं एंड एज सच रेंज में ज़्यादा कुछ है नहीं बट वी हैव टू जस्ट सी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ क्वेश्चंस जो वेराइटी क्वेश्चंस के तौर पे मैं ले रहा हूँ. बाकी रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इट इज़ very much easy to calculate, but many such small points you have to understand that when this class interval type data is provided, two methods what we are performing, that way you need to find out the range and the coefficient of range in the group data with class interval. And when this class interval are of discontinuous in nature, then also you need to first convert it into continuous form. Students, चलिए आगे बढ़ते हैं. जो 7th क्वेश्चन मैंने जो लिया है that is again of this class interval point of view, and again this class interval are of discontinuous in nature. तो स्टूडेंट्स, जो आपको लगता है कंटिन्यूस में कन्वर्ट तो करना ही है, लेकिन डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल में जो हमारे पास जो ये लोअर क्लास इंटरवल है और जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल है उसी को मैं कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दूं, बाकी को मैं कंटिन्यूस में कन्वर्ट नहीं करूं तो भी मेरा काम तो चल जाना है, क्योंकि मुझे तो उसी की ज़रूरत पड़ने वाली है. एज यू नो, इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमने सभी को डिसकंटिन्यूस में कंटिन्यूस में कन्वर्ट किया, सभी क्लास इंटरवल को, ये देखो. लेकिन फाइनली मुझे ज़रूरत किसकी पड़ी? तो लोवेस्ट क्लास इंटरवल की और हाईएस्ट क्लास इंटरवल की, उसी की तो आपको ज़रूरत पड़ी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द required class interval which is needed for calculating the largest and smallest value. So you can do it like that also, कि just आप इसके lowest और highest class interval का ही continuous class interval में conversion कीजिए. So under solution first method के हिसाब से first I am going to take largest value that is the first method में हमें कैसे लार्जेस्ट वैल्यू लेना है वो आपको सबको पता है. हाँ, ये सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. सो जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल है अपर लिमिट of highest class interval, but before that I would convert this class interval into continuous form. Here highest class interval is 190 to 199. This is discontinuous. And we want in the continuous form. तो स्टूडेंट देख रहे हैं आपको ये जजमेंट अभी मालूम ही है, एक एक का गैप है, तो आपको 0.5 को एडजस्ट करना है. लोअर लिमिट में 0.5 कम करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है. सो व्हाट इट विल बी 189.5 to 199.5. This is going to be a continuous class interval. Continuous class interval. And importantly,
for lowest value, smallest value, that is going to be lower limit of lowest class interval. Here lowest class interval is equals to 140 to 149, which is discontinuous. तो 0.5 को एडजस्ट करना है, लोअर लिमिट में 0.5 कम करना है, दैट इज 139.5 to 149.5. This is the continuous one. और अब हमारे पास यहाँ लोअर लिमिट तो के 139.5 और यहाँ अपर लिमिट बोलेंगे तो 199.5. This you have to take a largest and smallest value respectively, and therefore L is equals to 199.5 and smallest value is equals to 139.5, and with the help of this you can now obtain range and coefficient of range. Actually coefficient of range is also just they have asked to find out the range. Okay, calculate the range, only range you have to find out. This is the scores, and this is score of 50 college students, and that way you will write the unit after finding the range. So only you have to find range. Range is equals to largest value minus smallest value. Largest value 199.5 minus 139.5. डिफरेंस क्या आता है? 60.0, that is 60. Score specifically बोला नहीं है, so it is to be written in unit form. So this is what the range. Now if we go for the second method number second, so in this particular method, as you know, what you have to do, you have to take the average of the class intervals, that is the highest क्लास इंटरवल का एवरेज लेके आपको उसको लार्जेस्ट वैल्यू कंसिडर करना है, एंड लोवेस्ट क्लास इंटरवल का एवरेज लेके उसका आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू कंसिडर करना है. सो बिफोर दैट क्लास इंटरवल जो कंटिन्यूस में हमने कन्वर्ट किया है, हमको तो वही कंसिडर करना है ना, हमें तो उसी को ध्यान में लेना है, क्योंकि कंटिन्यूस में एक बार मैंने कन्वर्ट करके रखा है, यू कैन यूज़ दैट. वापस से उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं ना. वंस यू हैव कन्वर्टेड वी कैन यूज़ दैट. सो मेथड नंबर सेकेंड में द लार्जेस्ट वैल्यू विल बिकम मिड वैल्यू ऑफ हाईएस्ट क्लास इंटरवल क्या है 189.5 to 199.5. तो मिड वैल्यू कैसे ढूंढने का आपको मालूम है. सो दिस इज 189.5 प्लस 199.5 डिवाइडेड बाय 2. सो
389.0 upon 2, that is 389 upon 2. This is going to be 194.5, and smallest value will be mid value of lowest class interval कौन सा है 139.5 to 149.5, 139.5 to 149.5, ठीक है। तो उसका मिड वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 139.5 प्लस 149.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज टोटल करिए 289.0 upon 2. If you divide by 2, that is 144.5, 144.5। तो ठीक है, अभी आपको लार्जेस्ट वैल्यू मिल चुका है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल चुका है। नाउ यू कैन ऑब्टेन रेंज largest minus smallest, that is 194.5 minus 144.5, which is going to be 50, which is going to be 50। तो ये आपका रेंज आपको मिल गया इन द सेकेंड मेथड, एंड earlier you find with the help of first method। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना है दोनों मेथड को, एक तो ये क्लास इंटरवल टाइप डेटा में दोनों मेथड करना है, प्लस दूसरी बात जब इस तरह से डेटा रहेगा, जब डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल रहेगा, इन दैट यू फर्स्ट नीड टू कन्वर्ट इट इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज डन एब्सोल्युटली, दिस इज इन द प्रीवियस टाइप ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे हुआ है, जिसमें कि हमने वहाँ पे तो कोएफिशिएंट भी निकाला था, हाँ, या प्रैक्टिस के लिए कोएफिशिएंट भी ढूंढ सकते हैं इसी क्वेश्चन में भी। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम फॉलोइंग आर द टेम्परेचर रिगार्डिंग रीडिंग इन May 2001 फॉर 2 cities in महाराष्ट्र। टेम्परेचर, तापमान, न्यूज़ में देखते हैं ना हम लोग, लास्ट में न्यूज़ में हम लोग ये वेदर रिपोर्ट देते हैं, उसमें टेम्परेचर का भी रिपोर्ट बोलते हैं, कैसा वेदर रहेगा, है ना, हवामान कैसा रहेगा, बारिश रहेगी कि हवामान साफ रहेगा, होता है ना, ये सब आप लोग न्यूज़ में कहीं ना कहीं कभी देख लो तो आपको पता चलता है। उन लोग ये सब सिटी के हिसाब से, उन लोग बहुत मेजर सिटी की उन लोग तापमान की जो है रीडिंग्स हमको देते हैं, है ना। सो इट इज़ इन May 2001 फॉर 2 cities in महाराष्ट्र, सिटी ए सिटी बी, सिटी का भले नाम नहीं है, 2 सिटी का कंपैरिजन दिया हुआ है। तो कि एक ए सिटी में जब भी 30 डिग्री का ये टेम्परेचर था, तभी उसी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, दूसरी सिटी में उस समय 31 डिग्री का टेम्परेचर था, एंड सो ऑन। उन्होंने कंपैरेटिवली उन्होंने 2 सिटी का अलग अलग आपको रिकॉर्ड अवेलेबल किया है। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड हियर, फाइंड द रेंज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर बोथ द सिटीज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों सिटी का हमें उन्होंने पूछा हुआ है, सो वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिविजुअली फॉर सिटी A and city B। तो under solution what I am preferring, give heading and have both 2 parts, else if you want you can calculate one by one for both the cities। first give heading for city A। ठीक है, अब ये सिटी ए का जब आप डेटा देख रहे हो तभी वो सिटी बी के डेटा का आपको कोई लेना देना नहीं, बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सिटी ए एज वेल एज
यू हैव रॉ डेटा दिस पर्टिकुलर सिटी ए की हम बात करते हैं. सो ये जो आपको टेम्परेचर अवेलेबल किया है, दिस इज रॉ डेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज, देख लो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 34, उसके पहले उसके बाद 36.5 है ना, 36.5. एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब कम टेम्परेचर कौन से दिन था, 29.5. So नाउ इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट है. एंड उसमें देखो ये दो सिटी का ऐसा देके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कि दो बार तो कैलकुलेशन करना ही अलग अलग, एक बार सिटी ए का और सिटी बी का. कोई नया नहीं है क्वेश्चन का मुझे, लेकिन एक बात ये क्वेश्चन लेने का पीछे का मेरा ये मकसद है कि यू कैन हैव द कंपैरिजन ऑफ बोथ दिस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस फॉर बोथ द सिटीज़. रेंज का कैलकुलेशन आप दोनों का करके आप कंपैरिजन कर सकते हैं. देन देयरफॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपैरेटिव स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन लिया हुआ है. चलिए रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट दैट इज 36.5 माइनस 29.5. चलो डिफरेंस निकाल लो. इट इज 7.0, दैट इज 7. और ये जो टेम्परेचर का यूनिट दिया हुआ है कि कुछ उन्होंने नहीं दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, कभी फ़ारेनहाइट में रहता है कभी डिग्री में रहता है, ठीक है ना, ठीक है. तो अभी हमको यूनिट बोला नहीं है, वी हैव जस्ट मेंशनिंग यूनिट्स, ओके, बिकॉज यूनिट इज मेंशन करना ज़रूरी है रेंज के केस में, क्योंकि रेंज इज़ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. चलिए आगे हम बढ़ते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट. तो भाई लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 36.5 माइनस 29.5 अपॉन 36.5 प्लस 29.5. ओके, तो ऊपर का डिफरेंस तो हमने निकाला है 7 यूनिट. नीचे डिनोमिनेटर में एडिशन करो, it is going to give you 66. So 7 upon 66 you will have to divide and you will have to find this 7 divided by 66. 0 पॉइंट पहले से लग जाएगा. 70 66 1 जा 66 कैरी 0 देन 40 चलेगा नहीं, 66 से 0 अगेन 400 आ जाएगा. नेक्स्ट 0 यू आर टेकिंग, देन 666 400 के पॉइंट ऑफ व्यू इतने से चलेगा. आप देख लो ज़रा, इफ़ आई डू 6 जा it is 396. Okay, 6 जा, it's enough, 3 digits we have taken. So the value will be this is equals to 0.11. See, third digit is 6, so I have rounded off with 2 digits, so 0.106 आ रहा है. Okay, so I have taken as 0.11. Okay, you may write all 3 digits or you may just consider point के बाद 2 digits. So third digit से हमको उसको ये second digit को round off करने मिला है. So this is unit free measure as a coefficient, you know it is a relative measure, so you don't write unit. चलिए ये हो गया सिटी ए का. Now we'll do for सिटी बी. सिटी बी, चलिए लार्जेस्ट वैल्यू ऑब्टेन करिए. टेम्परेचर्स दिए हुए हैं आपको. व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू अवेलेबल
36, 37, yes, 37 is the highest one. Or smallest value that is 31, or even smaller than that it is there. Okay, 31 is only the smallest one. चलिए रेंज निकालना शुरू करिए. लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, और 37 minus 31, it is 6. Okay, 6 units. And now you obtain coefficient of range. Coefficient of range, what is that? Largest minus smallest upon largest plus smallest. चलिए 37 minus 31 upon 37 plus 31. चलिए ऊपर का डिडक्शन तो आपके पास है ही, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 6 वैल्यू, और नीचे एडिशन क्या आ जाएगा 68. लिटिल बिट यू कैन डिवाइड, 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं. So now it is 3 upon 34. 3 upon 34 you have to check. 0 point पहले लग जाएगा. 30 again there will be 0 because 30 से ये चलेगा नहीं, 34 वंजा भी नहीं जाएगा. सो अगेन वी हैव टू टेक वन मोर 0. 300 के हिसाब से सोचना है. 34 एंड इट वुड बी 9 इफ यू ट्राई. इट इज़ 306, बढ़ जाता है. 34 8 से जाना चाहिए. is 272. 272 is our, so 34 8 will be 272. रिमेनिंग क्या आता है 28. One more 0 if you want to take 280. Again for 280 we will have to consider 34 8s only. So it is 0.088. You may go for it 0.09. 0.09 because third digit is more than 5, so second digit we can increase by 1, so it is 0.09, or you may write 0.088. So with that we have completed this question, and now with that जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं. देखो कुछ क्वेश्चन मैंने डेटा ओरिएंटेड नहीं है लिया हुआ है. दिस आर सम कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन. तो देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप प्रॉपरली फोकस करने हैं. सो बट इट इज़ जस्ट with the help of your formula you have to do. There is no such any further or any other type of things you have to consider. Just with the help of, आपको formula के मदद से ही इसके सबके solution को आपको perform करना है. But just you have to experience this type of questions also. So what is given in question number 9th? The highest value in a group of observations is 60.5. हाइएस्ट वैल्यू ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी हमको ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे उसमें से हाइएस्ट वैल्यू दिए हैं. सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन क्या है. हाइएस्ट वैल्यू इन द सेंस वी आर कंसिडरिंग एज अ लार्जेस्ट वैल्यू, दैट इज वी कंसिडर एज लार्जेस्ट वैल्यू, है ना. और वो लार्जेस्ट वैल्यू को हम L कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज 60.5 विच इज़ गिवन. एज वेल एज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज 0.1. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल्स टू 0.1. ये भी आपको दिया है, देखो क्वेश्चन में पढ़ के
ये इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ. फाइंड द लोवेस्ट वैल्यू इन द ग्रुप. लोवेस्ट वैल्यू that we represent as smallest value, है ना. कभी कभी आपको ये टर्म्स वगैरह अलग अलग दिखती है. हाईएस्ट वैल्यू को लार्जेस्ट वैल्यू बोलते हैं, है ना. लोएस्ट वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यू बोलते हैं. ये सब टर्म्स में कहाँ ना कहाँ फ़र्क दिखेगा, बट डोंट बी हैविंग ऐसा कोई टर्म में आपको अलग देखने पे आपको कन्फ्यूजन की करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट वे कि वो सबका मीनिंग तो सेम है ना सर. तो हमें ये ढूंढना है क्वेश्चन मार्क, लोएस्ट वैल्यू दैट इज क्वेश्चन मार्क. तो स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमको दिया है, तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ दिस कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. सिंस कोएफिशिएंट ऑफ रेंज is equals to largest minus smallest upon largest plus smallest. अब जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, यू सब्सटीट्यूट इट. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज 0.1, सो लेफ्ट हैंड साइड में 0.1 आ जाएगा. लार्जेस्ट वैल्यू जो हमें अवेलेबल किया है दैट इज 60.5 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू एस एज इट इज अपॉन 60.5 प्लस एस. तो अब देखो आप इसको सॉल्व करो आगे, तो आपको s की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी. तो क्या करना है, ये इसको ब्रैकेट में कंसिडर करो, ये पूरा ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करो. सो व्हाट इट विल बी 0.1 इंटू 60.5 प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बचेगा 60.5 माइनस एस. ठीक है. अब ये ब्रैकेट को एक्सपांड करना है. 0.1 इंटू 60.5, तो आप पॉइंट निकाल देते हैं ना, तो 605 अपॉन 10 और 0.1 का भी पॉइंट निकाल देंगे तो 1/10. अभी 1 न्यूमरेटर में है, 605 वो भी न्यूमरेटर में, 605 इंटू 1 605, मगर अपॉन में वो 10 और ये 10 100 हो जाएगा. तो 605 अपॉन 100 दैट इज गोइंग टू बी 6.05 प्लस 0.1 इंटू एस 0.1 s is equals to 60.5 minus s, 60.5 minus s, and therefore अब हमें s वाले टर्म्स s साथ में लाने हैं. सो ये जो s है माइनस 1s है, कुछ नहीं होता है कोएफिशिएंट में तो 1 होता है. यहाँ पे s जो है वो उसमें कोएफिशिएंट है 0.1. तो 0.1 जो होता है वो 1 से छोटा है. इसको हम राइट हैंड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो ये माइनस में है इसको हम लेफ्ट हैंड से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. बेटर है हम ये माइनस एस को लेफ्ट हैंड से ट्रांसफ़र कर देंगे और ये 6.05 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 0.1 एस प्लस एस इज इक्वल्स टू 60.5 माइनस 6.05. तो 0.1 प्लस ये 1s है, कुछ नहीं लिखा रहता, सिर्फ हम जैसे नॉर्मली लिखते हैं ना x, तो x कुछ नहीं है पीछे उसके कोएफिशिएंट में तो 1x होता है, मगर 1x हम लिखते नहीं. 1x मतलब ही x होता है ना. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. 2x लिखा तो 2 लिखना जरूरी रहता है क्योंकि 2 उसके कोएफिशिएंट में मालूम पड़ना चाहिए, बट 1x लिखने की कोई मतलब ज़रूरत होती नहीं है 1 लिखने की. 1 itself by default समझ में आ जाता है when only x is represented. Similarly when only s is represented, 1s is there that can be understood. So 1 plus 0.1 that is 1.1s और 60.5 minus 6.05. यहाँ पे आप डिडक्शन देखो that is 60.5. 60.5 मतलब I can write 60.50 and 6.05 उसमें से माइनस करना है आपको. सो इट इज़ गोइंग टू बी 54.45. 54.45. And now finally you have to find s, that means 54.45 divided by 1.1. 1.1. अब आप देखो एक मैं स्टेप ज़्यादा करके आपको बता देता हूँ ये पॉइंट का किस तरह से हम निपटारा करते हैं. 54
0.45 में 4.45 2 डिजिट है पॉइंट के बाद. इफ़ आई रिमूव दैट पॉइंट तो अपॉन में जाएगा 100 और 1.1 है नीचे, उसमें भी 1 पॉइंट निकाल देंगे तो ऊपर जाएगा 10 बिकॉज पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है. तो इसका एक ज़ीरो और इसका एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा. लेट इट बी अपॉन में 10 एज इट इज़. 5445 इसको आप 11 से डिवाइड कर दो और फिर डेसिमल डिजिट 10 का अप्लाई कर देना. सो नाउ आई नीड टू डिवाइड 5445 with 11. 4 ज़ा 44, 10 4 कैरी करो, 11 9 ज़ा 99, 5 कैरी करो, 55 11 5 एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया स्टूडेंट्स. 11 5 ज़ा 55. सो दिस इज आई कैन कैंसल इट. 11 495 ज़ा 5445 एंड 490 देखो तो क्या बच गया 495 अपॉन 10. वापस डेसिमल डिजिट अप्लाई कर दो. इट इज़ गोइंग टू बी 49.5. सो दिस इज योर वैल्यू फॉर s. दैट इज योर स्मॉलेस्ट वैल्यू. देयरफॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू हमको कैसे बोला है, पूछा है स्मॉलेस्ट दैट इज लोएस्ट वैल्यू है ना. और यू मे राइट लोएस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू 49.5. ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स. भले वो डेटा में से निकालने वाला क्वेश्चंस तो आपने देख लिए है, अलग अलग मैंने वैरायटी क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए हैं. ये भी उसके हिसाब से वैरायटी क्वेश्चन हुआ जिसमें कि हमें भले डेटा नहीं दिया हो, कुछ कैलकुलेशन के लिए रेडी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ताकि हमें फॉर्मूला का खाली यूज़ करना है. बस वही फॉर्मूला का यूज़ करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया है मैंने. आप देख लीजिए. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस पे मैंने लिया है. मैंने उल्टा लिया है. अभी हमने लोएस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड किया ना स्टूडेंट्स. अभी आपको लार्जेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेंगे. समझ में आ रहा है. तो उल्टा हो गया ना. क्वेश्चन में लोएस्ट वैल्यू दे दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी दिया हुआ है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट द हाईएस्ट वैल्यू. चलिए सिमिलर फैशन से हमको आगे बढ़ना है. पहले गिवन लिखेंगे दैट इज लोएस्ट वैल्यू. That is in our language we are writing as smallest value. S is equals to 52.4. Coefficient of range that is 0.2, and we need to find highest value, that is in our wordings we say as largest value. क्वेश्चन मार्क. ठीक है ना. तो चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं. जो कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दिया है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम. सिंस कोएफिशिएंट ऑफ रेंज is equals to largest value minus smallest value upon largest plus smallest. Coefficient of range is 0.2. Substitute करिए. Largest value which is to be obtained L as it is, smallest value which is given as 52.4, and in the denominator largest plus smallest L plus 52.4. अब ये ब्रैकेट को उधर ट्रांसफ़र करो. सो इट इज़ गोइंग टू बी 0.2 इंटू L प्लस 52.4 is equals to L minus 52.4.
चलिए ब्रैकेट के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, सो 0.2 इंटू एल प्लस 52.4 मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो क्या करो, मैं देखो थोड़ा आपको इजी कर रहा हूँ पॉइंट निकाल लेने का, मतलब 0.2 के नीचे भी पॉइंट निकल जाएगा तो 2/10 रहेगा, और 52.4 के नीचे भी पॉइंट निकल जाएगा तो 524 मतलब 524/10 हो जाएगा। देन यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 524 इंटू 2, 524 इंटू 2 1048, और अपॉन में 100 हो जाएगा, सो 10.48 आर गेटिंग। चलिए लार्जेस्ट माइनस 52.4, इसको वहाँ ट्रांसफ़र कर दो 52.4 को लेफ्ट हैंड साइड, और 0.2 एल को वहाँ राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करो, सो इट इज़ गोइंग टू बी माइनस 52.4 यहाँ आ जाएगा प्लस 52.4 प्लस 10.48 इज इक्वल्स टू 0.2 एल, और यहाँ एल ऑलरेडी है 1 एल माइनस 0.2 एल। चलिए इसका एडिशन क्या आ जाएगा, देखिए 52.4 है मतलब 52.40, और दूसरा वैल्यू 10.48, इसका आपको एडिशन करना है 62.88, 62.88। then the right hand side L 1L, L मतलब 1L, 1L minus 0.2L, तो it is 0.8L, therefore L is equals to 62.88 divided by 0.8। अब इधर भी आप पॉइंट वगैरह निकाल लेवे, तो 6288 अपॉन 100 जाएगा, और 8 का भी इधर 0.8 का भी पॉइंट निकाल देंगे तो न्यूमरेटर में 10 हो जाएगा, सो से 1110 इज़ कैंसल्ड। अब देखो ये 8 से कैंसिल होता है, मतलब 2 से कैंसिल करेंगे तो 4, और ये भी 2 से कैंसिल करेंगे, अगेन यू कैन गो विथ 2, and then again you can go for 2। 786 अपॉन 10 क्या बचता है, 786 ऊपर बचता है और अपॉन में 10 बचता है, सो इट इज़ गोइंग टू बी 78.6। सो यू गॉट दिस लार्जेस्ट वैल्यू स्टूडेंट्स, 78.6। तो ये हो गया स्टूडेंट्स सिमिलर क्वेश्चन द प्रीवियस वन एज कम्पेयर टू दैट। यहाँ पे आपको खाली वो लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के अंदर दोनों क्वेश्चन के अंदर अलग अलग पूछा है, उस हिसाब से हमने फाइंड आउट किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स, बारी बारी से हम इस स्टाइल के क्वेश्चन लेते हैं, जिसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने का पहले क्या दिया है, एंड देन वी नीड टू डिसाइड हाउ वी विल अप्रोच टू इट, व्हाट वी हैव टू फाइंड। चलिए, द सम ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 40। सम ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट, सम मतलब टोटल, सम मतलब क्या होता है बच्चों, meaning for that it is total of the highest, that is our largest value, and the lowest, that is our smallest value in the group of observation is 40। sum मतलब total। चलिए सॉल्यूशन में पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, तो क्या लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, इसका टोटल सम मतलब 40। द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज 0.2, the coefficient of range, so this coefficient of range is here 0.2। ठीक है, यहाँ पॉइंट करना है आपको, पॉइंट प्रिंट नहीं हुआ है, 0.2, so this is 0.2 which is given coefficient of range is equals to 0.2। find the हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू इन द ग्रुप, मतलब हमें फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू।
ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। तो सीधा हिसाब है। अब आप देख लो, मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपको दिया है 0.2, यू सब्सटीट्यूट। अच्छा, आपको लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं और उसका उपयोग यहाँ करना है। लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट का हमको सब्सटीट्यूशन करना है 40 अपॉन में, और लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर में एज इट इज़ पड़ा रहेगा। चलिए 40 को यहाँ ट्रांसफ़र कर लो। सो 0.2 इंटू 40 इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। देयरफॉर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 40 इंटू 2, देखो 0.2 का पॉइंट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, अपॉन में 10 हो जाएगा, अपॉन में 10 जो होएगा उसका 0 और ये 40 का 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 8। समझ में आ रहा है डायरेक्ट किया। And that for this particular equation I am getting as a number 2 I am keeping. Now what I will do, I will solve this first equation and this second equation simultaneously. This both equation I am going to solve simultaneously. तो भाई solving equation 1 and 2, आप लोग को मालूम होगा स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का लीनियर इक्वेशन के नेचर का ये इक्वेशन है। जैसे हम एक्स और वाई के पैटर्न में सॉल्व करते थे, स्कूल में भी किया हुआ है आपने। तो लार्जेस्ट, ये वापस मैं दिखा देता हूँ, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू 40, ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा वाला है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू 8। अब देखो स्टूडेंट, मुझे ये प्लस एस माइनस एस कैंसिल हो ही रहा है, मतलब मेरे को साइन चेंज करने की किसी की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट आई विल बी राइटिंग हियर, एडिंग। सो लार्जेस्ट एल प्लस एल 2L, और ये माइनस एस प्लस एस कैंसिल हो गया। राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 40 प्लस 8 48, देयरफॉर L इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 2 विच इज़ गोइंग टू बी 24, going to be 24. Very importantly we got this largest value. Now you know फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप ये लार्जेस्ट वैल्यू एल की वैल्यू रख दो तो आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो पुट एल इज इक्वल्स टू 24 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, सो दैट इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू 8। इसमें आप L की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 24 माइनस S इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर 24 माइनस 8 इज इक्वल्स टू S, देयरफॉर S इज इक्वल्स टू 16, S इज इक्वल्स टू 16। सो स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट वैल्यू 24 और स्मॉलेस्ट वैल्यू 16 ये आपको मिल चुका है। एंड ये आपको खाली कंफर्मेशन के लिए, बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू कंफर्म दैट दिस वैल्यूज आर राइट और नॉट, यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू this coefficient value, so that you will get 0.2 and you can confirm it that with the help of this largest and smallest value we are getting this coefficient of range as 0.2 which is verifying it. तो वो आप करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7। अभी हमको वहाँ पे सम बोला था ना स्टूडेंट्स, मतलब सम मतलब टोटल एडिशन, यहाँ हमको डिफरेंस बोला है। सो गिवन में लिख लीजिए पहले, हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस, दैट मीन्स हम हाईएस्ट के लिए लार्जेस्ट वैल्यू ऐसा यूज़ कर रहे हैं वर्ड, और लोवेस्ट के लिए स्मॉलेस्ट ये यूज़ कर रहे हैं। सो डिफरेंस में लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू 7, है ना। ये किस तरह से हमें स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना है, ध्यान रखना है। डिफरेंस बिटवीन
हाईएस्ट मतलब हमारे लिए है लार्जेस्ट, एंड लोवेस्ट मतलब हमारे लिए है स्मॉलेस्ट। दिया है ना हमको, दैट इज 7, और साथ में हमको दिया था कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज 0.1, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज 0.1, 0.1, फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू। सेम टाइप का क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने सम बोला था, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का सम बोला था, यहाँ उन्होंने डिफरेंस बोला है। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दिया है, वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ दिस, सिंस कोएफिशिएंट ऑफ रेंज largest minus smallest upon largest plus smallest, coefficient of range 0.1 is equals to largest minus smallest given 7, सब्सटीट्यूट करो, अपॉन में largest plus smallest as it is रखेंगे, ब्रैकेट में रखो और उसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र करो। दिस इज गोइंग टू बी 0.1 इंटू एल प्लस एस एंड इज इक्वल्स टू 7 एज इट इज़। ये मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट ओपन करके, 0.1 इंटू एल, 0.1 एल, या ब्रैकेट ओपन करने की जगह पे आप 0.1 को सामने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दो। सो इट इज़ गोइंग टू बी लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 0.1। अब भाई ये आप 0.1 का पॉइंट निकाल दोगे तो लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, दिस इज़ गोइंग टू बी 7 इंटू 10 अपॉन कुछ नहीं बचना है, 1 बचना है, बिकॉज 0.1 का पॉइंट निकल जाएगा तो 1, और उसका डेसिमल जो पॉइंट के बाद एक डिजिट था, इसलिए अपॉन में जो 10 आ गया वो न्यूमरेटर में गया। सो दिस इज गोइंग टू बी लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इज इक्वल्स टू 7070, विच इज़ आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रीवियसली जो गिवन क्वेश्चन में जो दिया था इसको हम कंसिडर करके चलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ this both equations we will be solving simultaneously. So solving equation 1 and 2, equation 1 and 2. So first equation was largest minus smallest is equals to 7, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन है largest plus smallest is equals to 70। और अब वापस से देखो मैं दोनों को ऐड ही करूँगा, because this minus s plus s is going to be cancelled. So this is, both are going to cancel. L plus L, this is going to be 2L is equal to 7 plus 70 is equals to 77. And therefore, the largest value will be 77 upon 2, which is going to be 38.5, 38.5. Now put L is equals to 38.5 in इक्वेशन नंबर 1 में रखो, किसी भी एक में रखो चलता है, बट वी आर कीपिंग इन इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज गोइंग टू बी 38.5 minus s is equals to 7, therefore 38.5 minus 7 is equals to s, therefore s is equals to 38.5 minus 7 करना है, 7 मतलब 7.0, it is 31.5, 31.5. okay, so this is what the similar type of question earlier हमने जो किया उसमें largest प्लस स्मॉलेस्ट सम आपको अवेलेबल किया था, वेर हियर इन द 12th क्वेश्चन दे हैव प्रोवाइडेड लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ये जो डिफरेंस बोला जाता है, डिफरेंस मतलब दोनों का माइनस, तो वो आपको दिया हुआ है और उसके बेसिस पे हमने उसको सॉल्व किया है। बट दोनों का मेथड तो सिमिलर बेसिस पे आगे बढ़ा ना, दोनों को करने के लिए तो हमने सेम टाइप के मेथड से हमने उसको अप्लाई किया है। सो स्टूडेंट्स, विद this type of additional questions we have done, which is based on this range, and we have finished this part. Till now this range part we have absolutely covered with varieties of questions,
एज फार एज द इनिशियल क्वेश्चंस वेर कंसर्न्ड, जो रॉ डेटा पे से आपको रेंज निकालना था, है ना, फिर एक मैंने डिस्क्रीट डेटा के बेसिस पे क्वेश्चन लिया जिसमें भी आपको रेंज निकालना था। ओके, तो स्टार्टिंग के रॉ डेटा में तो कोई आपको वेरिएशन नहीं था मेथड में, जस्ट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप फाइंड आउट करके उसके आधार पे आपको फॉर्मूला यूज़ करके रेंज फाइंड आउट करना था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड भी उसमें ही रो डेटा के बेसिस पे किया, क्योंकि उसमें अपने को नंबर ऑफ जो इंफॉर्मेशन के अंदर जो हमारे पास मिस्टेक की इंफॉर्मेशन दी थी वो डे वाइज दिया हुआ है, तो डे का क्या महत्व नहीं है। हमारे को जो ये इंफॉर्मेशन दिया था 15, 20, 21 एंड सो ऑन, दिस आर द इंफॉर्मेशन एज अ रॉ डेटा वी हैव टू कंसिडर। डे इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज डे को हमें कैलकुलेशन में लेना नहीं है, वो उन्होंने अपने रेफरेंस के लिए दिया हुआ है एंड देयरफॉर इट इज़ आल्सो अ रो डेटा क्वेश्चन। ये इस तरह का क्वेश्चन इसलिए भी मैं ले रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट को ये डे का हिसाब भी पता चलना चाहिए कि दे आर जस्ट गिविंग फॉर द रेफरेंशियल बेसिस, this they don't have to consider in the calculation, so that we must come to know कि ये पॉइंट भी अपने को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया, देखो क्लास इंटरवल टाइप, बट बिफोर दैट आई वुड प्रेफर इट टू रेफर दिस क्वेश्चन नंबर 4 बिकॉज दिस इज अ डिस्क्रीट डेटा। रॉ डेटा के बाद नेक्स्ट टाइप डिस्क्रीट डेटा, एंड देन आई विल और डिस्क्रीट डेटा में भी फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की कोई ज़रूरत होती नहीं है रेंज के कैलकुलेशन में। हाँ, just largest and smallest value we have to obtain with from the values of x, so even frequencies are given, no need in the calculation of range। then इसके बाद हमने ग्रुप्ड डेटा क्लास इंटरवल वाला केस देखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो मेथड्स हमने देखी, जिसके अंदर जो फर्स्ट मेथड हमने लिया है उसमें जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल का भी अपर लिमिट वो उसका लार्जेस्ट वैल्यू बना, और लोवेस्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू बना। और सेकंड मेथड में हमने क्या किया कि भाई ये एक आर्ग्यूमेंट रखी कि हाईएस्ट क्लास इंटरवल का एवरेज, मतलब कि मिड वैल्यू को हमने उसका लार्जेस्ट वैल्यू कंसिडर किया, और स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए जो है लोवेस्ट क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू कंसिडर किया। सो दैट वे वी interpret both these method in which largest and smallest both values हमने अलग assumption पे लिया, और उसके आधार पे रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ जो रेंज फाइंड किया है उसका वैल्यू अलग आपको मिला है। एंड इन द सब्सिक्वेंट क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया आज, जैसे मैंने स्टार्ट किया प्रीवियस 4th क्वेश्चन को आप देखोगे तो इट इज सेम, बिकॉज क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया है, उसके अंदर भी दोनों मेथड हम करेंगे। और मेन इम्पोर्टेंट आज जो हमने क्वेश्चन 6 के हिसाब से देखा कि जिसके अंदर क्लास इंटरवल जो है वो डिसकंटिन्यूअस नेचर के हैं। व्हाट डज इट मीन? डिसकंटिन्यूअस नेचर में है तो उसको हम पहले कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। आप पूरे क्वेश्चन का पूरे क्लास इंटरवल का कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लो एक बार, और फिर उसमें से आप लोवेस्ट और हाईएस्ट क्लास इंटरवल के बेसिस पे जो है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू का सिलेक्शन कर लीजिए। अगेन इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्लास इंटरवल पैटर्न, एंड देयरफॉर वी मस्ट परफॉर्म बोथ द मेथड्स, वी नीड टू परफॉर्म बोथ द मेथड्स, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दोनों मेथड हमने इसी वजह से इसमें भी करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल पैटर्न है। इवन इन 7th क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आई हैव रिपीटेड, क्योंकि इसमें भी देखो क्लास इंटरवल जो है वो डिसकंटिन्यूअस नेचर के हैं, सेम सोल्यूशन पैटर्न। एंड 8th क्वेश्चन में हमने CTA CTB करके कंपैरिजन वे से उसका सोल्यूशन निकाला। आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, रेंज का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू, है ना, यू कैन हैव कंपैरिजन। एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स जो है 9th ऑनवर्ड्स, 9th 10th 11th 12th, ये 4 क्वेश्चन हमने डेटा के बेसिस पे नहीं देखा, उसमें हमको इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दे दिया था, और जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है उसको हमने फॉर्मूला में यूज़ करके जो भी फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड किया है। खास करके ये साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन का हिसाब ध्यान में रखना, क्योंकि जो ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का ये आपको आना चाहिए, ये मेथड आपको
मालूम होना चाहिए. So with that we have concluded this range, which is a first part and first topic for this measures of dispersion. Later on next lecture में मैं नेक्स्ट टॉपिक मेजर ऑफ डिस्पर्शन का जो है मैंने ऑर्डर में पूरा आपको ओवरव्यू लिखाई दिया है. दैट इज़ क्वार्टाइल डेविएशन दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर, एंड उसके बारे में हम सीखेंगे और उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.